अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दिए जाते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। एक सिंपल सी भाषा में, ग्रुप ऑफ एटम्स when combined with organic compounds, when attached with organic compounds, when substituted with organic compounds, there's a change in the properties of the organic compounds. Clear? आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक ग्रुप, ठीक है, आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, देयर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम ग्रुप ऑफ एटम्स गेट अटैच्ड विद दैट organic compound. This becomes a functional group. तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर उस स्टूडेंट पे हमने मैथ्स जोड़ दिया तो उस बच्चे की टेक्निकल लाइफ चेंज हो जाती है। अगर वही बच्चा मैथ्स की जगह इंग्लिश पढ़ने लगता है, इट हैज डिफरेंट फील्ड। क्लियर? तो इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रुप ऑफ एटम्स अगर हम ऐड कर रहे हैं और वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, दैट ग्रुप ऑफ एटम्स आर टर्म्ड एज फंक्शनल। दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच alters the properties of the organic compounds is termed as functional group. ये मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और भी होते हैं, ये मैंने सिंपल बेसिक लिए हैं। पहला इसमें आता है हैलाइड ग्रुप। It has the formula X. So in halide group we have all fluorine, chlorine, bromine, iodine, and all are represented by X. Clear? Now hydroxyl group, OH. It is the group of O and H. This is the group of atoms, oxygen and hydrogen. Clear? Oxygen has different property, hydrogen has different properties, but OH when combines together have different properties, and that group termed as hydroxyl group. In the same way, CHO, the arrangement of atoms also matters. Okay, here we have OH, never write HO, वो hydroxyl group नहीं होगा, you have to write OH, नहीं तो कोई बच्चा ये गलती कर दे। After that, carboxyl group, COOH. Then keto group, C and O, and there is a double bond between C and O. Clear? Now ethers. When I have written R-O-R, R means alkyl group. That means you can also write its symbol is O. And two groups are attached here. Two organic compounds are attached here. In all these we have only one group of organic compound is attached, but here two groups of organic compounds are attached and O is in the middle, then it is ether. Now next thing, how will you name that? You have to add the suffix, पीछे लगाना है। तो जैसे हमने अल्केन में बताया था ANE लग रहा है, अल्कीन में ENE लग रहा है, तो इसी तरीके से हैलाइड वाले में पीछे आपका A नहीं लगेगा, क्योंकि ये अल्केन से निकला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने डैश डाला है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर अल्काइल ग्रुप चलता है हमारा। क्लियर है? तो ये हाइड्रोक्सिल में आप याद कर लीजिए, ये वाला OL, पीछे आपका ऑल लगेगा। अभी मैं इसको समझाती हूँ कि कैसे होगा। फिर एल्डिहाइड में AL लगेगा, ये AL। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि AL और OL में गड़बड़ कर देते हो, या AL OL लिखा होता है तो यहाँ ग्रुप गलत लगा देते हैं बच्चे। तो CHO वाले में AL है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कार्बोक्सिल COOH, इसमें ओइक एसिड लिखते हैं। तो इफ देयर इज एसिड, इट इज क्वाइट इजी टू नो दैट इट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर? कीटोन, we have one, we add one. Ether, we have to add oxy. How will we add oxy? Not in the last one. लास्ट में नहीं जोड़ते ऑक्सी। मैं अभी एक एक का बताती हूँ आपको कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेन बात आपकी क्या है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं?
Group of atoms which join with the organic compounds and changes their chemical properties are known as organic compound. Clear? Now, for example, we have a compound C2H5Cl and we have to write its IUPAC name. Now, it is C2, that is ethane. Clear? Now, where is Cl? Only in this case, you have to write chloro as a prefix. So, in case of halide, we write halogen group as a prefix. For example, we have, if it is not Cl, it is Br, bromo, then ethane. I think it is quite clear to you. For example, we next have C3H7Br. Clear? So, bromo, 3 prop. 3 means prop, propane. Easy? Don't go for the common name. Always prefer the IUPAC name. It is easy to learn organic compound. Now next one, hydroxyl group. I am going to take same examples. Now in hydroxyl group we have to attach OH. I have write here OH. I am writing here OH. Clear? Now 2 eth. And we have to add what? All. Ethanol. Finish. Ethanol. Clear? कोई दिक्कत? यहां पर है आपका 3 है तो क्या होगा? प्रोपेनॉल. फंक्शनल ग्रुप में मैंने ये 3 ग्रुप्स आपको और बताए, लेकिन इन तीनों ग्रुप्स में कंफ्यूजन हो जाता है और थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसको बताने के लिए मैं ये अलग से बता रही हूँ. तो मैंने आपको बताया ये इसका फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कीटोन का और ये ईथर का. ठीक है. और इसकी नेमिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था, बताइए क्या बताया था. यहाँ पर मैंने बताया था ओइक एसिड, यहाँ बताया है ऑन और यहाँ बताया है ऑक्सी. Just see how it works. For example, I have a formula CH3COOH. Here I have a formula CH3COC2H5. And here, or either I have written CH3. Now here we have the formula CH3OC2H5. क्लियर. तो पहचान आप कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे. ये COOH है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे CO लिखा है तो ये कीटोन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे O लिखा है तो ये ईथर हो गया. ये क्लियर है. अब इसके IUPAC नेम में प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो यहाँ जब हम IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक, तो हमें ओइक एसिड लगाना है, ये आपको पता है. लेकिन जो एक दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर एक C ये है और एक C ये है. तो क्या हम इसका नाम मीथेनोइक एसिड लिखें या इसका नाम इथेनोइक एसिड लिखें? बहुत छोटी सी बात है भाई. एक हिसाब से तो यहाँ 2 C हो गए, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये CH3 एक ही C है. तो जो COH वाला है, अभी तक जो ग्रुप थे उसमें C नहीं था, इन्हीं तीनों ग्रुप्स में C आपके आ रहे हैं. तो यहां पर ये C आपका गिना जाएगा, यानी इथेनोइक एसिड वाला फॉर्मूला करेक्ट है. ठीक है. अब यहां आ जाइए, यहां आपको ओन लिखना है, तो यहां भी C गिने जाएंगे. कितने C हो गए? 1 2 3. दैट मीन्स प्रोपेनोन. क्लियर. और अगर मान लीजिए जैसा मैं अभी कर रही थी,
मैंने इसको कर दिया C2H5। अब कितने सी हो गए, 1 2 2 4, तो ब्यूटेनोन। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें सी नहीं लिखा जाता, इसमें हम दोनों तरफ के ग्रुप्स को अलग अलग नेम करते हैं। और कौन सा ग्रुप पहले लिखेंगे, कौन सा ग्रुप बाद में लिखेंगे, जो ग्रुप, बताइए कौन सा ग्रुप पहले लिखेंगे, कौन सा ग्रुप बाद में लिखेंगे, बड़े छोटे के हिसाब से लिखेंगे कि। तो अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या है, मैथ, इसका नाम क्या है, एथ। अगर हम अल्फाबेटिकल चलते हैं तो ABCD में E पहले है और M बाद में है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलेगा। जो ग्रुप पहले है उसका नाम पहले, और उसी ग्रुप में हम ऑक्सी लगाएंगे। तो यानी इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन, पूरा नाम, ठीक है। यानी जो ग्रुप पहले है उसी में आप ये ऑक्सी ऐड करोगे। मेरे ख्याल से पूरा फंक्शनल ग्रुप आपका रेडी हो गया।